Hello everyone, welcome back to EduMaths Mentor. This is Kapil Yadav, and today I am going to tell you about the Inspire Fellowship Scheme. As you all know, we have already discussed the Inspire SHE scheme, and that video which is on SHE scheme I think is very helpful to all of you, and you all have given a good response to that video. Now, first of all, in this video, I want to tell you about that 2019 बैच स्टूडेंट्स सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ये देखिए नोटिफिकेशन आई हुई है इंस्पायर स्कॉलरशिप 2019 बैच सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स यानी कि जिनकी लास्ट डेट 13 दिसंबर थी वो बैंक डिटेल सबमिट करने की उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 30 अप्रैल तक। तो अभी भी स्टूडेंट्स 1 मंथ बाकी है। अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी बैंक डिटेल्स सबमिट नहीं की हैं तो वो अभी सबमिट कर सकता है। सो वी आर coming to the topic, that is Inspire Fellowship Scheme. As you all know about DST, here there are 3 schemes we have already discussed in one of our video. Now I am discussing only Inspire Fellowship Scheme. So here you can see Inspire Scheme, Seeds Program, SHE Program we have already discussed, and here AORC Program, Inspire Fellowship or Inspire Faculty Award. Now today in this video we will discuss about Inspire Fellowship Scheme. So here we will discuss about Inspire Fellowship Scheme. So you can see Inspire Fellowship Scheme. What is Inspire Fellowship? It is the 4th component of Inspire program launched by the government. As we will discuss already Inspire 2 programs, SHE and the last one here. This is Inspire Fellowship, that is 4th program launched by Government of India to strengthen the national science and technology base. It is being implemented by the Department of Science and Technology, DST. This component is focused on the attraction of students to pursue doctoral degree. So you can see it is for PhD scholars, doctoral degree in the basic and applied sciences including engineering, medicine, agriculture, veterinary, pharmacy, etc. After either master's degree in science or master's degree in engineering applied sciences. So here only 2 types of students can apply. You can see, first of all I want to tell you about that all of you should have to go on Inspire's official site, that is you have to search on Google login Inspire. You can see here login Inspire and Inspire homepage, and after that you have to click on FAQ, that is frequently asked questions. ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है आप जिसके बारे में भी मतलब नॉलेज लेना चाहते हैं, इंस्पायर फॉर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, आइदर फॉर इंस्पायर इंटर्नशिप और इंस्पायर फेलोशिप स्कीम. बट now in this video we are discussing about Inspire Fellowship Scheme, so you have to click on this. Here you can know all about the scholarship. So here we can see who are eligible to apply for Inspire Fellowship Scheme. Here are the eligibility criteria for Inspire Fellowship Scheme. You can read: Inspire scholar having secured minimum 70% marks in aggregate at MSc or integrated MS-MSc level. ठीक है, या फिर all in the university you should first rank holder at university level examination in post PG level examination. You can read all out this: engineering, medicine, pharmacy. Here these are the branches from where you should have to perform your master's degree. Okay, you can read yourself these points. Students who are first rank holder in college including autonomous college examination have obtained degrees through distance education mode or first rank holder in any specialization at MSc second year are not eligible for the offer of Inspire Fellowship. The fellowship will be offered based on screening availability of fellowships in the current year, as 1000 fellowships are available annually. ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो तो आपको डेफिनेटली ये फेलोशिप मिलेगी. Every year 1000 scholars are selected. So all the eligibility criteria, मतलब ये सेलेक्ट होने का जस्ट
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि अगर ये आपके पास है तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे। ये अप्लाई करने की मतलब क्राइटेरिया आपके पास ये चीज़ें तो होनी चाहिए, ठीक है। बाद में और भी चीज़ें देखी जाती हैं, आपके ग्रेजुएशन लेवल के मार्क्स, 12th तक के मार्क्स देखे जाते हैं आपके, और भी आपकी जो ग्रेजुएशन के अंदर और फिर मास्टर्स के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस है, सब कुछ देखा जाता है। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। लेवल 1 और लेवल 2 में आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 1 में आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। ये सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हेन वी कैन अप्लाई फॉर इंस्पायर फेलोशिप, तो फेलोशिप एवरी ईयर सितंबर अक्टूबर के मंथ में अनाउंस होती है। इसी साइट के ऊपर आप जा सकते हैं, लॉग इन इंस्पायर सर्च करना, वहाँ पे आपको इंस्पायर का ऑफिशियल साइट, ये आपको देखो ऑफिशियल साइट का लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। लिंक के ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और सितंबर और अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे फॉर्म्स अप्लाई किए जाते हैं फेलोशिप के लिए। सो हाउ शुड आई अप्लाई फॉर इंस्पायर फेलोशिप स्कीम? वन कैन अप्लाई फॉर द फेलोशिप स्कीम थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली व्हेन द कॉल इज अनाउंस्ड, ठीक है। जब फॉर्म्स अप्लाई, मतलब यहाँ पे साइट के ऊपर जब फॉर्म्स ऑनलाइन होंगे तब आपको इनको अप्लाई करना होता है। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द रैंक सर्टिफिकेट, जरूरी है कि रैंक सर्टिफिकेट भी आपको अप्लाई करनी है। यस, इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द रैंक सर्टिफिकेट इन इंस्पायर फेलोशिप फॉर्मेट ओनली, और ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे साइट के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर? तो ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर लेवल 1 और 2 दो लेवल्स में होता है। अप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड इन पीएचडी प्रोग्राम, जो ऑलरेडी पीएचडी में मतलब एडमिट हो चुके हैं, to submitting application and selected at both level and level 2 will be awarded the final offer for the fellowship scheme। मतलब लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल पे सेलेक्ट हो चुका होगा जो एप्लीकेंट, और पीएचडी में एडमिटेड हो चुका होगा, वो फाइनल ऑफर के लिए उसको कॉल की जाएगी, वो कॉल होगा, ठीक है। एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट एडमिटेड टू इन पीएचडी, और जिस एप्लीकेंट ने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया वो विल नॉट बी अवार्डेड, ठीक है। उसको सिर्फ प्रोविजनली अवार्ड के, मतलब प्रोविजनली सिलेक्ट होगा वो, लेकिन उसको फिर अवार्ड नहीं मिलेगा फेलोशिप का, क्योंकि वो लेवल 1 पे सिलेक्ट हुआ है सिर्फ। अगर उसने पीएचडी में एडमिशन लिया ही नहीं देन ही विल नॉट बी अवार्डेड। सो यू शुड ऑल्सो नो वन थिंग दैट आफ्टर यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड, ये देखिए प्रोविजनल ऑफर के बारे में बता भी रखा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोविजनल ऑफर, स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर इंस्पायर फेलोशिप बट नॉट एडमिटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम वुड गेट प्रोविजनली सिलेक्शन एंड दे विल बी गिवन 1 year वैलिडिटी टू गेन एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम। यही मैं आपको बता रहा था, यू शुड एडमिटेड इन पीएचडी प्रोग्राम विद इन 1 year ऑफ प्रोविजनल लेटर। व्हेन यू विल गेट द प्रोविजनल लेटर, प्रोविजनल सिलेक्शन जब आपको मिल जाए, देन उसके 1 year के इंटरवल के अंदर आपको एडमिशन लेना है पीएचडी के अंदर, ठीक है। फाइनल ऑफर उसके बाद कॉल होगी आपको। स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर इंस्पायर फेलोशिप एज वेल एज गॉट एडमिटेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम वुड बी गिवन फाइनल ऑफर फॉर द इंस्पायर फेलोशिप। उसके बाद आपको फाइनल कॉल होएगी फेलोशिप के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द टेन्योर फॉर दिस फेलोशिप? टेन्योर आपको पता है फेलोशिप का अबाउट 5 years का है, आई थिंक। द फेलोशिप शैल बी टेनेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years, हाँ ठीक है, फ्रॉम इंस्पायर फेलोशिप। उसके बाद व्हाट वुड बी द, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो इंस्पायर फेलोशिप की साइट पे जाके। मैंने आपको बता दिया कि इंस्पायर की जो साइट है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाना और फिर वहाँ से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में देखना, और फिर इंस्पायर फेलोशिप स्कीम वाले लिंक पे जाना, और वहाँ से ये सब कुछ आप रीड आउट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी A to Z। और फिर भी आपको अगर नहीं क्लियर होती देन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू एंड आई विल रिप्लाई time to time. You can also see the Inspire SHE video which I have made about 5 or 6 months ago. On that video, students and applicants are getting replies time to time. I want to say that आपको मतलब हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। ओके, सो you can read yourself all these. So where will be the amount of fellowship transferred? कहाँ पे आपका अमाउंट ट्रांसफर होएगा? तो fellowship amount to be selected students are transferred by electronic mode through PFMS to the host institution bank account where students are pursuing PhD program. Okay, the sanction letter of individual fellow available to fellow as well as to the host university through web portal.
What is PFMS? You should all have to know what is PFMS. PFMS क्या होता है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जितनी भी टाइप की फेलोशिप्स या स्कॉलरशिप्स, जो भी अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको एज ए स्कॉलरशिप मिलता है, वो सारा यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड होता है। PFMS पे आप जाके देख सकते हैं आपकी स्कॉलरशिप आई है, आपकी फेलोशिप मतलब संक्शन हो चुकी है या नहीं, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं pfms.nic.in पे, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े ये देखने के लिए कि आपकी स्कॉलरशिप सेंक्शन हो चुकी या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे आपका डाटा रिकॉर्ड हो जाता है। इट इज़ मैंडेटरी टू दैट होस्ट इंस्टीट्यूट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर PFMS। यस, इट इज़ मैंडेटरी। सो यू कैन read out yourself all these questions। सब कुछ यहाँ पे मैंशनड है, सब कुछ, एवरी क्वेश्चन यहाँ पे आस्क्ड हैं एंड आंसर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है अबाउट इंस्पायर फेलोशिप, यू कैन आस्क व्हेन विल आई एलिजिबल फॉर अपग्रेडिंग माई फेलोशिप फ्रॉम GRF टू SRF। GRF से SRF में जाने के लिए आपको मतलब कब आप एलिजिबल हो जाएंगे। सो यहाँ पे सब कुछ मैंशनड है, यू कैन रीड आउट योरसेल्फ। सो थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है या फिर चैनल पे किसी और वीडियो में आपकी क्वेरी है, कुछ और आप नई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे या कुछ और पूछना चाहते हैं, देन आप बता सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही लेट आई है, आई नो, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी तक वीडियोस नहीं आ पाई, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगी चैनल पे टाइम टू टाइम, ऑल अबाउट द यूनिवर्सिटीज़, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड this inspire and all the प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म्स, अदर वीडियोस, अदर कंटेंट्स मैं आपको देता रहूँगा। अगर कोई भी क्वेरी है फिर भी आपकी इस कंटेंट से रिलेटेड, इंस्पायर फेलोशिप से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच अगेन एंड बी विद द चैनल। थैंक यू सो मच।